Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. ठीक है, तो सुनो, आप लोग सभी लोग मेरे, हेलो बेटा, Yes, sir. Sir. Yes, sir. जिसका बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है वो अपने आप को अनम्यूट कर लो अपने आप बेटा, है ना। Yes, sir. और आप सभी लोग जो रेगुलर पार्टिसिपेट करते हो बेटा, तो आप लोग सभी लोग मेरे को आप लोग सभी लोग मेरे ग्रुप में ज्वाइंट हो। Yes, Yes, sir. sir. और Yes. जो मैं, हाँ ठीक, आपसे पहले जो क्लास लेता हूँ सवेरे लेता हूँ, आप 4 वीडियो डेली देखा करो, 4 वीडियो, 9 बजे वाला भी, 10 बजे वाला भी, और 3 बजे वाला भी, और 4 बजे वाला भी। ओके सर। Okay, sir. हाँ, क्योंकि सब में सेम टॉपिक चल रहा है ना, इसलिए अभी अभी आप लोग के लिए बहुत फायदा होगा। Okay, sir. Okay, ओके, sir. और जरूर देखा करो, और पूरा देखा करो, चाहे कितना भी बड़ा हो छोटा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं देखता हूँ देखा करो। Sir, मैं भी देखती हूँ. हाँ, ओके, सो Sir, I have one question. बोलो बेटा, बोलो। Sir, how to find the bond length? How to find bond length? Sir, bond order. Sorry, sir. बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ को सर समझाया तो बैकग्राउंड नॉइज को कंप्लीट एक कर दो बेटा, बैकग्राउंड नॉइज को। इसका आ रहा है. Sir, you haven't sent yesterday's doubt classes video. But at least you can subscribe my channel. No, you can see the date and you can immediately you can see the things. No, it means you have not subscribed it till now. No, sir, I have subscribed. Okay, if you have subscribed, then yes, what was Yes. the yesterday's date? You see the date and you go on and Okay, sir. see, yeah, bond parameters we are discussing. You can see it is there. Okay, sir. Then also I will send in the group, but anyhow, just I'm telling you that if I miss also, you can see, just type chemistry by Subhas sir. Okay, sir. Just you type now. You have any WhatsApp in YouTube? Yes, sir. Just you type chemistry by Subhas sir. You will get all videos. फेमस Just you type. Tell me, green board, like this. Yes, sir. I feel. Yes, sir. It is there. यस सर Yes, Yes, sir. sir. Then Okay. so okay. Next question is, children, see. So if you see, already see what I have done in the previous from 3 to 4. These are the things, children. Once you go and after finishing, see, today I have done polarity and dipole moment. So everything I have explained nicely. Everything. You please read it nicely. Everything you will understand. Okay, everything you will understand. Everything like this. Okay, see, you have explained how to calculate dipole moment. I have explained how to calculate dipole moment. Okay, shall I move forward? Yes sir. Okay, so वीडियो देख I will see, I will continue from here. From 3 to 4 completed. Now I am doing 4 to 5. So you will see both the videos. Okay, children? ओके सर। And somebody asked me how to calculate bond order, no? Yes, sir. Okay, so there are many ways to calculate bond order. In that first one I will try to tell you. See, suppose, children, suppose 4 rupees are there, children. 4 rupees.
Hello children. Yes, Yes, sir. sir. And if I want to divide into 3, Yes, sir. Yes, sir. what amount each one will get? 4/3. What will be the value? 1.33. That is known as bond order. Okay, sir. Did you understand? See, I will give you one Yes, example. sir. I will give you Yes, one sir. example. Total bond. Person will think that यार पूछा था बॉन्ड ऑर्डर, ये क्या 4 से 3 डिवाइड कर दिया. है देखो, एक मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं ऐसा O माइनस और O और डबल बॉन्ड. ठीक है बेटा. अब हमें ये जानना है कि इस मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर कितना है. तो अब मेरे को खाली ये बताओ कि इस पूरे मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड है. 4. 4. 4. 4. बॉन्ड. और कितने लोगों के बीच में डिवाइड करना है. 3. 3. तो 1.33 आ गया कि नहीं बॉन्ड ऑर्डर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और इसका असली तो ये सही रिप्रेजेंटेशन नहीं, इसका सही रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा O O O. तो ये 1 तो कंप्लीट हो गया, सबको 1-1 रुपया तो मिल गया. ये जो 0.33 है, इसको केमिस्ट्री में ऐसा लिखा जाता है, देखो 0.33 को Noted. डॉट 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 डॉट. किसको किसको समझ में आ गया. हाँ सर, समझ में आ Sir, गया. आ गया. हाँ, sir. Understood. हाँ, ये एक तरीका है बॉन्ड ऑर्डर का. और अच्छा तरीका मैं आपको थोड़े दिन के बाद बताऊंगा, 2-3 क्लास के बाद. ओके, Okay, sir. Okay, नाइस. sir. Sir. नेक्स्ट इज. सर हाँ बेटा. एक सवाल था हाँ, सर. बोलो. जब 1.5 था तब भी हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन टाना था और उसके ऊपर डॉट डॉट देके रिप्रेजेंट किया था. हाँ, वो जो अभी सुनो, 1.33 हाँ है. हाँ 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 हाँ, वो एक्चुअली किया जाता है. जो हम खाली बगल में पहले हम लिख देंगे 1.33 लिख देंगे, तब इसका मतलब है डॉट 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 का मतलब है 0.33. अगर 1.5 लिखे रहता तो डॉट डॉट का तो मतलब उसका होता मतलब 0.5. हाँ. अच्छा हेलो. सर, अगर स्ट्रक्चर दिया हो तो हम लोग को पता कैसे चला कि बॉन्ड ऑर्डर 1.33 है 1.5 पे. हम बॉन्ड देखेंगे ना, हम बॉन्ड गिनेंगे पहले. स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो बॉन्ड देखेंगे कि कितने बॉन्ड है. कोई भी एक स्ट्रक्चर में बॉन्ड देख लेंगे. नहीं सर, अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिया हो उससे कैसे पता करेंगे. ना, हाइब्रिड स्ट्रक्चर से नहीं समझ में आएगा. हाइब्रिड स्ट्रक्चर से नहीं समझ में आएगा. हाइब्रिड स्ट्रक्चर उसमें ऐसा लिख करके बोलना पड़ेगा कि दिस इज CO3-2. ठीक है. अच्छा. हेलो. यस सर. Okay, उसके sir. बाद हमको किसी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा, मतलब ये वाला बनाना पड़ेगा. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. तब जाके समझ में आएगा कि वो 0.33 है. समझ में आया बात. यस Yes, सर. sir. Yes, Yes, sir. sir. अगर हाँ, तो अगर इधर से इधर जाते हैं तो ये समझ में आएगा, इधर से ये जाते हैं तो ये समझ में आता है. ओके. Yes, sir. कोई शक. No, sir. नहीं सर. No, No, sir. sir. ठीक, चलो हम अब आगे बढ़ते हैं. तो हम लोग ना ये अभी पिछला क्लास में डाइपोल मोमेंट कर रहे थे. आप अभी मैं पूरा अपलोड कर दूंगा इमीडिएटली. पूरे लेक्चर को देखिएगा, पूरा 40 मिनट का लेक्चर है, अच्छा से देखिएगा. Yes, sir. ठीक है. तो आप 40 मिनट उधर पढ़ा दिया, 40 मिनट आपको पढ़ा दूंगा, तो 80 मिनट हो जाएगा. तो टॉपिक अच्छा से ना आपके पास आ जाएगा. पूरा गैप हो जाएगा. हेलो. हाँ Yes, सर. sir. Sir. ठीक है. तो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा. हम लोग सब डाइपोल मोमेंट के लिए डिस्कस कर रहे हैं बेटा, डाइपोल मोमेंट के लिए. ठीक है. डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एग्जांपल दे देते हैं. उसके लिए ये वीडियो Hello, देख लो. sir. ये वाला वीडियो देखना पड़ेगा. इसमें सब चीज हम सिखा दिए हैं. ठीक ठीक है. है सर. हेलो. हाँ, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. सिखा दिए बेटा, इसमें सिखा Hello, दिए. sir. इसके बाद भी अगर कोई डाउट होगा तो फिर कल है ना, कल पूछ लेना मेरे को. ठीक है सर. ठीक है, sir. तो वैसे मैं आपको पहले तो पढ़ाया है वन डाइपोल मोमेंट, कितनी बार पढ़ा चुका हूँ. यस सर. ठीक है. तो
देखो मैं 4 मॉलिक्यूल दे रहा हूं आपको, और इधर इधर H है, इधर H है, और इधर H है, और इधर Cl है। इधर H है, इधर H है, इधर Cl है, इधर Cl है, Cl, ठीक है। इधर एक H है, इधर Cl है, इधर Cl है, इधर Cl है, और इधर में Cl है, इधर में Cl है, इधर में Cl है, इधर में Cl है, ठीक है। यस सर। अब आपको बताना है कि इनमें से मान लेते ये A है, ये B है, और ये C है, और ये D है। आपको बताना है कि इसमें किसका Yes, सबसे sir. ज्यादा डाइपोल मोमेंट है। ठीक है बेटा, Yes, sir. ठीक है। तो हाँ ये देखो, और मैं जो स्ट्रक्चर बनाया मैंने सिंपल वे में बनाया। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है बच्चा, टेट्राहेड्रल, ऐसा है ये, हर कार्बन टेट्राहेड्रल, ठीक है। यस सर। जैसे मान ओके लेते सर। हैं H, Yes, हाँ sir. H लगा दें, Cl लगा दें, Cl लगा दें, Cl लगा दें। ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाया मैंने, A, B, C या D? C. हेलो, C. C. हाँ ये वाला C है, ये वाला C है। चलो अब C, बताओ sir. मेरे को डाइपोल मोमेंट किसमें ज्यादा है, किसमें कम है। ठीक है, तो ये देखो, पहले तो हाँ, पहले तो एक हड़बड़ाने का बात नहीं है, पहले एक एक बॉन्ड को देखो। कार्बन और हाइड्रोजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? Carbon. हाँ, तो मतलब उसको हाँ ऐसे ऐसे दिखाते हैं। फिर वो लेक्चर पुराना देख लेना, उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो इसको हम कहते हैं कि कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन टाना हुआ है, तो वहां पर एक पोलैरिटी है। यहाँ भी हाँ, ये भी टाना Yes, हुआ तो एक sir. पोलैरिटी है, ये भी टाना हुआ तो यहाँ पर भी एक पोलैरिटी है, ठीक है। Yes, यस sir. सर। और Yes, ये Cl अपनी तरफ खींचा हुआ, देखो चारों बॉन्ड में अंतर है। बाकी 3 जगह कार्बन अपनी तरफ टान रहा हुआ है, और ये चौथा में क्लोरीन अपनी तरफ टान रहा है, ठीक है। हाँ सर। Yes, sir. तो ऐसा लग रहा है कि सब लोग मिल करके एक ही डायरेक्शन में, सभी लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सभी लोग एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. बहुतों को लग रहा कहाँ एक डायरेक्शन में जा रहे हैं यार, ये और ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, नहीं समझे बात को। हेलो, Yes, ठीक sir. है, ठीक है। तो मान लेते हैं, ठीक है, देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना दें। ओके, यहाँ पर H है, यहाँ H है, यहाँ पर H है, यहाँ Cl है, ठीक है। तो ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ठीक है, ये इधर खींच रहा है, ठीक है, लेकिन ये इधर खींच रहा है, देखो, ठीक है। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और उससे फिर क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो इसमें डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि सबका डायरेक्शन लगभग एक साइड है, ठीक है। यस सर। तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एक Cl इधर खींच रहा है, ठीक है, एक Cl देखो इधर खींच रहा है, ठीक है। तो इसका जो एंगल है, एंगल ये थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया बेटा Cl का। हेलो, Yes, sir. हाँ, तो ये Yes, एंगल, sir. हाँ ये एंगल बढ़ते जाएगा ना, ये एंगल बढ़ते जाएगा। हाँ, तो तुम हाँ, तो जो फोर्स sir. होता है, हाँ ये फोर्स अगर एकदम ऑपोजिट में आ जाएगा तो कैंसल हो जाएगा। तो हाँ, अब देखो, हाँ, तो इसलिए इन दोनों में डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। यहाँ पर देखो इधर भी एंगल बढ़ रहा है, इधर भी एंगल बढ़ रहा है, तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पर कम हो गया। और यहाँ पर देखो इसको ये कैंसल कर रहा है, और इसको ठीक है, ये कैंसल कर रहा है, ठीक है। इसीलिए Yes, sir. इसका डाइपोल मोमेंट बिल्कुल 0 हो जाएगा, ठीक है। यस सर।
तो Yes, ऑर्डर sir. क्या हो जाएगा बोलो तो, ए का डाइपोल मोमेंट ज्यादा था बी से, बी का ज्यादा था सी से, सी का ज्यादा था डी से। यहाँ तक समझ लोगे? हाँ सर। Yes, sir. ओके चलो। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. और इससे पहले वाला जो वीडियो है 3 से 4 देखना मत भूलना बेटा, देखना मत भूलना, बहुत Yes, अच्छा वीडियो है sir. वो। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग Yes, करते हैं sir. नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है हाइब्रिडाइजेशन भी, ठीक है, आइडिया ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। Yes, sir. आइडिया ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी पता लगता है डाइपोल मोमेंट से। फॉर एग्जाम्पल अगर AB2 है समझो, ओके, हेलो, यस Yes, सर। sir. मैंने बताया था Yes, ना एक sir. दिन ये AB2 मॉलिक्यूल बनाना, हाँ सर, हाँ बहुत अच्छा सर। example था। ठीक है। और हाँ, तो खाली AB2 लिख देने से हम लोग ये नहीं समझेंगे कि A और B मतलब 180 डिग्री में है, ऐसा नहीं समझेंगे खाली AB2 लिखने से, ओके। हाँ सर। Yes, साथ yes, में sir. हमें, हाँ साथ में हमें एक और वैल्यू चाहिएगा, वो वाला वैल्यू मिलने से हम लोग समझ जाएंगे कि ये स्ट्रक्चर करेक्ट है करके। डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0, ये जरूरी है। AB2 लिखा हुआ है और डाइपोल मोमेंट 0 लिखा हुआ है, Yes, sir. समझ रहे बात को? हाँ Yes, सर। sir. ओके, तब हम समझेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है वो इस डायरेक्शन का है, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट और इसका डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट में है, ठीक है। यस सर। Yes, हाँ, sir. तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। Yes, sir. अच्छा, और जब ऐसा हो रहा है तो दो बॉन्ड बन रहा है ना, तब हम कहेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। दो हाइब्रिड हाँ, ऑर्बिटल है, इसका हाइब्रिडेशन sp है। Yes, sir. Okay, sir. एक मिनट रुको, एक कंडीशन अप्लाइड है। ये जो ए सेंट्रल एटम है ना, हेलो, हाँ सर। हाँ सर। हाँ इसका, Yes, sir. हाँ Sir. इसका, हाँ इसका जेड जो है वो लेस देन 21 होना चाहिए। जेड का मतलब एटॉमिक नंबर 21 से कम होना चाहिए, ठीक है। ओके सर। मतलब स्कैंडियम Yes, से sir. पहले पहले वाले एटम सब में काम आएगा ये, ठीक है, ये फॉर्मूला। ओके सर। कंडीशन अप्लाइड है, Yes, sir. ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देख लो, BeF2। इसमें देखो बेरिलियम, तो जेड बराबर 21 से नीचे है कि नहीं। हाँ हाइड्रोजन, सर। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम का जेड बराबर 4 होता है। तो Be, और उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि BeF2 है और उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 है। तब आप समझ जाइए कि BeF और F ये लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है डाइपोल। तो नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है, नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, वो कितना हो गया बेटा, 0। 0। हाँ, एक दूसरे को 0. कैंसिल। हाँ। और हम समझ जाएंगे तब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या Yes, है, sir. sp। वैसे मैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए अलग से एक लेक्चर दूंगा, आप टेंशन मत लो। थोड़ा डाइपोल मोमेंट में एक छोटा सा एप्लीकेशन आया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके सर। ओके, एक दूसरा और है, देखो Okay, sir. जो मैंने कहा था कि एक मान लेते AB3 मॉलिक्यूल है, तो अब AB3 मॉलिक्यूल है और अगर लिखा हुआ है कि डाइपोल मोमेंट 0, ठीक है, और जो A है, ये Z का वैल्यू लेस देन कितना होना चाहिए, 21। 21। 21. ठीक है, तब आप समझ लीजिए कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं हाइब्रिडाइजेशन को और अलग से समझाऊंगा, जिसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। BF3 और डाइपोल मोमेंट 0 है, मतलब हमको एक ऐसा ज्योमेट्री बनाना पड़ेगा जिससे कि ये लोग एक दूसरे को कैंसिल कर जाए। तो एक दूसरे को कैंसिल कर जाए का मतलब है एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ठीक है।
तो इन दोनों का जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा यस सर, 0. उसको हम लोग ग्रीन कलर से ऐसे करके दिखा सकते हैं। और ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसल, इसलिए डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, 0। 0. इसका नेट डाइपोल ये था, समझ गए बात को? हाँ सर. ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लो, एक पॉइंट और लिख दो। तो सर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा? हाँ sp2 होगा, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड बना है ना, 3 सिग्मा। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो sp, और 3 सिग्मा बन रहा है तो sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो sp3, ठीक है। इतना याद करो, ठीक है। हाँ, थोड़ा माइक के सामने से सांस लेना बंद करो, बहुत जोर जोर सांस ले रहे हो। देखो डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यस सर, ठीक है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, डाइपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई दे दे HF, HCl, HBr, HI, 4.5. हाँ ठीक है, देख लो। बताओ किसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है? H तो सब में कांस्टेंट है, हाँ सर. तो इसका 4.0 होता है, इसका 3.0 होता है, इसका 2 पॉइंट कुछ होता है ना, 2 पॉइंट समथिंग, इसका और कम होता है, ठीक है। हाँ यस सर. सर, ब्रोमीन का कितना होता है, तो आप वैल्यू सब देख लेना, है ना। तो हम कहेंगे कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, फिर इसका, फिर इसका। समझ गए बात को? Yes, sir. ठीक। यस सर, डाइपोल मोमेंट जो है, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे भी डिपेंड करता है। ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो ठीक है, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। जैसे अब मान लेते हैं HF है, H2O है और NH3 है। बताओ किस पे लोन पेयर ज्यादा है? तो आपको मालूम है इस पे एक लोन पेयर है, इस पे 2 लोन पेयर है, और फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर है। तीनों पेयर। समझ में आई बात? यस सर, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, इसका डाइपोल मोमेंट थोड़ा कम है, इसका NH3 कम है। ये सब कुछ कुछ टेक्निक्स है जो काम में लेना है आपको बार बार, ओके सर, ठीक है। हाँ सर. हाँ, फॉर क्या क्या चीज के लिए देखो, होमो मॉलिक्यूल, होमो मॉलिक्यूल है, अगर होमो मॉलिक्यूल है, ठीक है, और अगर वो लीनियर है, अगर वो ट्राइगोनल प्लानर है, अगर वो टेट्राहेड्रल है, अगर वो टेट्राहेड्रल है, तो समझ लीजिए उनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा बेटा, 0। ठीक है, ओके सर, समझ में आई बात? यस सर, ओके। डिस्टॉर्टेड शेप डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। डिस्टॉर्टेड जो रेगुलर शेप नहीं होते हैं, हम बताएंगे रेगुलर शेप क्या होता है, डिस्टॉर्टेड शेप क्या होता है। मोबाइल के इधर है ऐसा। चलिए बढ़ू आगे। यस सर। तो ये सब कुछ आज हम लोगों ने पोलैरिटी के लिए पढ़ा था। अब हम लोग इस पे अगर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो और अच्छा होगा। उससे पहले मैं एक काम करूंगा, ठीक है, उससे पहले एक काम करूंगा, और वो है एक लास्ट टॉपिक। याद रखिएगा 3 बजे से सोचो क्लास चल रहा है, तो 3 से 4 वाला आपको लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर के बाद पूरा पढ़िएगा,
ठीक है सर। Okay, sir. Yes, हाँ, तब जाकर आपको ये जो अभी बना रहे हैं ये पूरा और कंटिन्यूटी भी हो जाएगा और बहुत सारा कंटेंट आपके इसमें हो जाएगा। उतारते भी जाइएगा, पॉज कर कर करके पूरा उतारते जाइएगा, खाली सुनते मत जाइएगा। आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है बेटा। यस सर। yes, sir. परसेंटेज, हाँ, परसेंटेज ऑफ आयोनिक, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर किस बॉन्ड में? तो जाहिर सी बात है कोवेलेंट बॉन्ड में ही पूछेगा ना, ठीक है। वो कितना के बराबर होता है मालूम है? ठीक है, वो कैसे निकालोगे मालूम है कैसे? तो उसका एक फॉर्मूला है, देखो, वो है ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट बाय कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट, कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट इनटू 100। मतलब अगर आपको परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर पूछा है तो वो ये वैल्यू देगा कि कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट ये था और ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट ये था, ठीक है। हाँ सर। Yes, sir. हाँ, और कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट के लिए मैं ऑलरेडी ऊपर लेक्चर में दिया हुआ हूँ, उसके लिए Q इंटू डी चाहिएगा। मतलब चार्ज कितना है एक एंड में और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, मतलब बॉन्ड एंगल। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा, समझ गए? इसको कहते हैं इसको कहते हैं कैलकुलेटेड। और ऑब्जर्व का मतलब मशीन से ऑब्जर्व किया हुआ, Yes, sir. ठीक है। जैसे हाँ, एक क्वेश्चन दूं? Yes, sir. One question. हाँ, एक क्वेश्चन तो देखो एकदम अच्छा से समझ में आ जाएगा कि क्या है क्वेश्चन। लिखो एक क्वेश्चन, द डाइपोल मोमेंट ऑफ हाँ HBr, the dipole moment of HBr is 2.60। किसी का माइक थोड़ा सा अनम्यूट करो और आवाज रिफ्लेक्ट हो रहा है। 2.60 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर, ओके। Okay, sir. और जो डी वैल्यू है मतलब बॉन्ड लेंथ जो है वो दे दिया है 1.41 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। Okay, sir. हाँ, व्हाट इज परसेंटेज आयोनिक, क्वेश्चन मार्क। चलो अब बनाओ, अच्छा से बनाओ क्वेश्चन को। तो अब देखिए, ये है ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट चिल्ड्रन, ओके। यस सर। Okay, sir. ठीक है, तो अब हम लोग पहले तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो कैलकुलेटेड निकालते हैं कि कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट कितना होता है, ठीक है। हेलो बेटा। यस सर। Yes, तो sir. देखो, तो कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट का मतलब हो जाता है, और उसका फॉर्मूला तो आपको मैंने दे ही दिया है, Q इंटू डी। तो अगर HBr को कैलकुलेट करोगे, HBr का कैलकुलेट करोगे तो यस सर। हाँ वेट, तो मान लेते हैं जो चार्ज आ गया है आपके पास, चार्ज 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आ गया है, ओके। ये कैलकुलेटेड का मतलब हम क्या मान के चलते हैं कि पूरा इलेक्ट्रॉन Br के ऊपर ही ट्रांसफर हो गया, ठीक है। हाँ सर। Okay, sir. हाँ, तो मतलब 100% आयोनिक हो गया है। तो 1.60 कूलम और ये डिस्टेंस आपको दे ही दिया है 1.41 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है बेटा। हाँ Okay, सर। sir. हाँ, तो ये आपका ये कैलकुलेटेड है, ये ऑब्जर्व है। बस आराम से परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर निकाल लो। तो अब थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो 2.60 इंटू 10⁻⁻30 ये कूलम और ये मीटर आएगा, और इधर में आपके पास इसको थोड़ा सा
1.6 और इधर 1 पॉइंट ये कितना था 4.1 1.4 हाँ तो 6 का 6 बाद 24 का 4 2 4 का 4 और 2 6 कटम कुटम 6 2.24 होगा सर। या 4 12 2 2.24 तो 2.24 इंटू 10 टू द पावर ये कितना आ गया बेटा -19 और -10 कितना हो गया -29 सर। हाँ समझ में आ रहा है बात यस सर। यस ये सर। और ये पूरा कैंसिल हो गया ठीक है Yes, sir. यस सर। ठीक है हाँ ये चीज ऊपर ये चीज मान लेते हैं ये भी कट जाएगा ना तो 10 टू द Yes, पावर sir. -10 टू द पावर -1 है टू द पावर -1 का मतलब नीचे आ जाएगा 10 ओके नीचे 10 लिख दे यस सर। यस सर। ओके इसका मतलब ये हो गया 2.60 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 22.4 अब इसको आप सॉल्व करो बेटा सॉल्व करो 2.60 को 22.4 से डिवाइड करो जल्दी करो 11 पॉइंट समथिंग आना चाहिए या एकदम कंप्लीट 0.1160. कितना आ रहा है 0.1160. यस सर। 0.1160 आ रहा है ना अब इसको 100 से मल्टीप्लाई sir. कर दो अब इसको 100 से 11.60. आ गया बात समझ में यस सर। यस सर। 100 मतलब परसेंटेज कैरेक्टर निकाल रहे हैं तो इतना आ गया तो परसेंटेज का मतलब हो गया 11.60 आयोनिक कैरेक्टर है कैसा रहा क्वेश्चन अच्छा. ठीक है सर। चलो ओह आप इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा भाई प्लीज मिस मत करिएगा मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ Yes, sir. ठीक है तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ जो ठीक है पोलैरिटी पे डिपेंडेंट है पोलैरिटी पे तो रुकिए ये कौन सा है ओके पोलैरिटी तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन polarity and dipole moment okay problem based on polarity and dipole moment चलो पहला प्रॉब्लम है लिखो बेटा pure covalent bond is present in ये पेज नंबर 24 है पेज 24 का क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 46 ओके बेटा प्योर कोवेलेंट बॉन्ड is present in option 1 acetylene option 2 carbon dioxide option 3 ethyne and option 4 ethane ठीक है बच्चों ओके सर। pure covalent bond is present pure covalent bond is present pure covalent bond इथाइलीन है इथाइलीन चलिए बनाइए
क्वेश्चन था प्योर कोवेलेंट डबल बॉन्ड बेटा, प्योर कोवेलेंट डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, ये क्वेश्चन एक्चुअली प्योर कोवेलेंट डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन। ओके, तो मालूम है इसका पोलैरिटी उतना से लेना है जरूरी नहीं है जितना कि स्ट्रक्चर से लेना देना है। ओके, हेलो, यस सर। हाँ, Yes, sir. मतलब ये क्वेश्चन जानना चाह रहा है कि चारों का स्ट्रक्चर मालूम है कि नहीं। तो अब देखो, इथेन का मतलब होता है C H H H H H और H, समझ गए? तो ये तो सिंगल बॉन्ड है। हेलो, यस सर। Yes, sir. ये पॉसिबल Carbon नहीं है। अच्छा, इथाइलिन, ये कॉमन नाम है इथाइलिन, इसमें डबल बॉन्ड होता है बच्चों, ऐसा मॉलिक्यूल होता है ये सब स्ट्रक्चर वगैरह बनाना आप सीख जाओगे। तो अब देखो, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम। यस सर। दोनों Yes, का sir. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? प्योर कोवेलेंट। यस सर। प्योर कोवेलेंट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। समझ में आई बात? Yes, sir. क्योंकि डबल बॉन्ड पूछा है। अच्छा, CO2 देखिए, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड तो है लेकिन यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ये पोलर बॉन्ड है। फिर यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये भी पोलर बॉन्ड है। समझ में आई बात? पूरा मॉलिक्यूल जो है, पूरा मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 है, वो अलग बात है, लेकिन एक एक बॉन्ड में तो पोलैरिटी है। Yes, sir. यस सर। एसिटिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? एसिटिलीन का, तो एसिटिलीन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो ये दोनों भी, ये पोलर बॉन्ड है, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है ये। हेलो, Double bond. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन में Okay, डबल sir. बॉन्ड पूछा था, इसलिए ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। उम्मीद करते हैं ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे जो हम लोग बताते जा रहे हैं ना, इसको माइंड में सेट करते जाओ, Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर, which of the following has least polarity? Which has least polarity in bond? In bond. ओके, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ऑप्शन 1 आपके पास एक है HF, ऑप्शन 2 है आपके पास HCl, और ऑप्शन 3 है आपके पास HO, और ऑप्शन 4 है आपके पास HS। ठीक है? विच ऑफ द पोलैरिटी इन बॉन्ड, ठीक है। तो लीस्ट पोलैरिटी, तो यहां पर एक नॉलेज है, कहीं पर दिया हुआ है कि जिसमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, पोलैरिटी उसमें ज्यादा होगा। Yes, sir. यस तो सर। H तो सब में कॉमन है, यस सर। H सब में कॉमन है, ठीक है। तो अब हम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखते हैं तो इसमें 4.0, इसमें कुछ 3.0, इसमें 3.5, और सल्फर में 3 से थोड़ा कम होगा। समझ में आई बात? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या बोला जाए?
यहाँ भी पोलैरिटी है, यहाँ भी हम लोग पोलैरिटी बोल सकते हैं, यहाँ भी पोलैरिटी। यहीं पर देखने से लग रहा है कि पोलैरिटी सबसे क्या है, कम है, क्योंकि H कांस्टेंट है सब में। और हमको Yes, लग sir. रहा है इन फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वाला कौन आइटम है, सल्फर। Sulfur. एक Yes, बार sir. चेक करके देखते हैं। 47 है ना, 47 का 4 बच्चों, ठीक है। Yes, sir. आ गया बात समझ में? Yes, sir. क्वेश्चन Yes, sir. Yes, जिसको sir. नहीं आया पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 48 एक डाउट है सर। बोलो। सर मे भी अगर किसी क्वेश्चन में दिए मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट दिया या कोई ऐसा कंपाउंड दिया है जिसका मुझे आपको क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर पोलैरिटी पता नहीं है, तो मैं कैसे पता करूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू? ठीक है, तो मान के ये चलिए जो सर, मैं सुनो, ये जो मैंने, हाँ, ये जो मैंने आपको जो इससे पहले वाला जो लेक्चर दिया है ना, यस सर, वो और ये जो आज जो दिया हो, ये जब पूरा पढ़ेंगे उसके बाद, यस सर, हाँ, उसके बाद थोड़ा सा एक दो तो और थ्योरी है, वो जब पढ़ लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, बिना वैल्यू का भी हम लोग बताने के पोजीशन में रहेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। यस सर, मैं उसी में कंफ्यूज हुआ था। नहीं, इसमें कंफ्यूजन का तो कोई बात ही नहीं है। इसमें तो हमें अभी सुनो, हम तो वैल्यू का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको तो ये तो मालूम है ना कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है और ऑक्सीजन का क्लोरीन से ज्यादा है। वैल्यू को छोड़ दो, वैल्यू को छोड़ दो, मान लेते हैं हम वैल्यू यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको ये तो मालूम है ना कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, फिर क्लोरीन और फिर सल्फर का सबसे कम है। H सब में कॉमन है। यस सर, यस सर। अब तो आ गया ना समझ में? हाँ सर, मैं वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। वैसे ही सॉल्व करना ही है केमिस्ट्री में हमको, लेकिन मैं तो प्रूफ के साथ काम करता हूँ ना, इसलिए दिखा रहा था सारा वैल्यू। चलिए, which contain both polar and non-polar bonds. Question number 49. Which contain 48 polar and सर 48 non-polar सर bonds? क्वेश्चन 48 होगा। क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन नंबर, हाँ, 48 है। चलो, ये बीच में ये आ गया था ना, ये खत्म। चलिए, which of the following contain polar and non-polar bonds? ऑप्शन स्क्रीन फ्रीज हो गया है। ऑप्शन 1 लीजिए। हाँ, ऑप्शन 1 है NH4Cl, मेरा नेटवर्क ऑप्शन 2 HCl, सर स्क्रीन फ्रीज है। स्क्रीन क्या हो गया? फ्रीज हो गया, फ्रीज हो गया सर, रुक गया। Sir. रुक जाएगा, अभी बढ़ा देते, अभी बढ़ा देते। खुल जा सिम सिम, थोड़ा चल भाई, थोड़ा हिलो डुलो, हिलो डुलो। पापा कौन है छत पर? आ जाएगा तो बताना। नहीं लगे देगा। सर आ गया। Yes, यस sir. सर आ गया। चलो बताओ, किसमें पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड दोनों है? विच कंटेन्स पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स? पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स। पोलर एंड नॉन पोलर। मालूम है CH4 में सब लोग, ठीक है, CH4 के अंदर सारे लोग पोलर बॉन्ड है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हाइड्रोजन है ना, तो सब लोग, सब बॉन्ड का नेचर एक ही जैसा है। इसको हटा दे सिस्टम से, Yes, sir. ठीक है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अच्छा, अगर H2O2 की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, देखो, तो ये बॉन्ड पोलर है, देखो, ये बॉन्ड
ये बॉन्ड पोलर है, ये बॉन्ड पोलर है, लेकिन ओ ओ का दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम। Yes, sir. तो ये पोलर बॉन्ड, ये पोलर बॉन्ड, और ये है एनपी मतलब नॉन पोलर। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है? Which contain polar and non. Which contain both polar and non-polar bonds? तो एक ऑप्शन तो यहाँ नजर आ रहा है, लेकिन HCN के अंदर देखते हैं, H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। तो इसके अंदर ये जो बॉन्ड है बच्चों, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के कार्बन से ज्यादा है, तो ये पोलर है बेटा। और ये बॉन्ड भी पोलर है, समझ गए? यस सर। तो इसमें दोनों बॉन्ड पोलर है, इसमें कोई बॉन्ड मतलब उतना पोलर नहीं था, या सब बॉन्ड एक जैसा था। ठीक है। यहाँ भी देख लो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हाँ यहाँ भी सब लोग पोलर बॉन्ड है इसमें, है ना? Yes, sir. कोई मन में सोच रहा होगा कैसे समझ में आ रहा बाबा, कौन पोलर कौन नॉन पोलर। ठीक है ना? अब देखो, और ये Cl माइनस है, देखो ये तो केटायन हो गया और ये एनायन हो गया। सवाल है ये सब बॉन्ड एक जैसा है कि नहीं बेटा? हेलो? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. या तो हाँ, तो सब बॉन्ड वो लोग सब पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलर वाला कहीं भी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही नजर आ रहा है? थर्ड, H2O2. H2O2। मेरे को एक बार चेक करने दो। 48 का मेरे पास की है ना, इसलिए सब चीज मेजर करके रख रहा हूँ। 48 का 3, समझ में आई बात? करेक्ट आंसर सर ये वाला क्वेश्चन ना वो एग्जाम में भी आया था। ओके ओके, आने दो कोई बात नहीं। अब आप समझ गए ना कि हम लोग मतलब जो एग्जाम है ना, इसीलिए हम आप लोग को क्या कर रहे हैं मालूम है, थोड़ा बोल रहे हैं कि थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ो। जैसे सवेरे पढ़ाया ना, वो वाला लेक्चर करो, 3 से 4 वाला पढ़ाया उसको लेक्चर करो, और उन 3 से जो पढ़ाया उसको बोला हूँ कि 4 से 5 जो हम पढ़ा रहे हैं उसको अटेंड करो। इस तरह से 2-3 दिन के अंदर अंदर में हम लोग फुल फ्लेज में आ जाएंगे, एकदम पूरा ट्रैक में आ जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? यस सर। Yes, sir. हाँ, मतलब एग्जाम से पहले क्वेश्चन हम लोग बना ले तो ज्यादा अच्छा है। एग्जाम के बाद अगर क्वेश्चन बनाए तो क्या फायदा है? समझ में आया बात? यस सर। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि माय हम्बल काइंड रिक्वेस्ट कि भाई खूब पढ़ ले, कुछ पूरा वीडियो सब देख ले बाबू, पूरा देख लो, अच्छा से कर लो, पढ़ लो। इसलिए कि हम लोग थोड़ा सा डबल ड्यूटी कर लेंगे ना, तो हम लोग एक बार ट्रैक पे आ जाएंगे, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे ना। तो हाँ, हमको ये सुनना पसंद है कि सर मालूम है आज जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें वो सब क्वेश्चन आए थे जो हम लोग लास्ट वीक में किए थे। समझ में आई बात? Yes, sir. POC क्या? जिसको समझ में आया हाथ उठाओ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दिख गया ऐसे ही। हमको वीडियो दिख रहा है सबका? ऐसे ही हाथ उठा लीजिए। कुछ लोग सोच रहा होगा मैंने तो वीडियो ऑन ही नहीं किया है, तो दिख कैसे रहा है सर को? ऐसा जरूर सोच रहे होंगे। कौन कौन सोचा बोलो तो? अच्छा, विधि अग्रवाल सोच ली, लेकिन हम तो टीचर है बेटा, हमको मालूम है। हम लोग पढ़ाते रहते हैं ना बच्चा लोग को, तो उनका हमको मालूम है कि ये वाला लाइन बोलने से फेस एक्सप्रेशन क्या होगा, क्या चीज समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग, अब बताइए, मेरे सामने तो कोई नहीं है, खाली एक स्क्रीन है, तो लेकिन फिर भी मैं इमेजिन कर रहा हूँ ना कि मेरे सामने इतने सारे बच्चे बैठे हैं और मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है कि नहीं? यस सर। तो ये सब Yes, चीजें sir. हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द इलेक्ट्रॉन पेयर इज नॉट इक्वली शेयर्ड, ये क्वेश्चन नंबर 49 है। टाइम हो गया सर। टाइम हो गया है?
यस सर 450 हो गया 53 हो रहा है ठीक है, सर 453 ठीक ठीक। तो अब ऐसा करते हैं, आज इतना ही पढ़ते बेटा, एक है ना? क्वेश्चन कर दीजिए सर, एक क्वेश्चन क्वेश्चन कर लो, चलो 49। If the electron pair is not equally shared between two atoms, okay, A and B, then the bond is number 1 single bond, polar covalent bond, number 3 non-polar bond, and option 4 pi bond. Okay. पोलर कोवेलेंट सर बॉन्ड ऑप्शन 2 If the electron pair is not equally shared between two atoms A and B, then the bond is. अब सिंगल बॉन्ड और उससे हम लोग को क्या मतलब है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। शेयर्ड बोल रहा है ना, शेयर्ड बोल रहा है मतलब कोवेलेंट फिक्स कर दिया है। शेयर्ड बोल करके वो जाने अनजाने में आपको बोल दिया है कि द बॉन्ड वाइज कोवेलेंट। ओके, नॉट इक्वली बोल करके बता दिया है कि द बॉन्ड वाइज पोलर। ओके, यस सर, ए और बी बता के समझा दिया है कि Yes, ए sir. और बी के बीच में बॉन्ड है। हेलो Yes, sir. पायल। यस सर पायल, हाँ गुड आफ्टरनून, मैं ऑनलाइन क्लास में हूँ, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। तो पायल का फोन था। तो हम लोग कहाँ थे बेटा? ए बी में थे हम लोग। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो यस, हम लोग पूरा 9 तक कर लिए सर। क्या बेटा? नहीं सर, पूरा 9 तक कर लिए सर। क्या बोली बेटा? पूरा मैं कंप्यूटर से सट गया हूँ बेटा, अब बोलो। कौन बोल रहे हैं? बोलो बेटा, स्पीकर के सामने आके बोलो थोड़ा। हेलो बेटा, ठीक है। उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, उनके साथ जैसे ही संपर्क होता है हम लोग फिर उनसे बात करेंगे, चर्चा में शामिल करेंगे। तब तक हम लोग ये जान चुके हैं कि वो सिंगल बॉन्ड ये कोई गारंटी नहीं है। सिंगल बॉन्ड तो है ही। मल्टीपल चॉइस अगर होता ना कि इफ एन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वली, तो कौन कौन है, तो सिंगल बॉन्ड हो जाता। एक बात बोले, इफ द कितना बताया है वो, इफ द इलेक्ट्रॉन पेयर बोला, इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब, तो इलेक्ट्रॉन पेयर बोला है तो इलेक्ट्रॉन पेयर तो सिंगल बॉन्ड भी तो होता है। हेलो, यस सर Yes. हाँ, लेकिन सिंगल में कहीं भी Yes, सिंगल में कहीं भी कोवेलेंट टाइप का बात नहीं लिखा है कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यस हेलो, यस सर Yes, तो sir. हाँ, और पहला इलेक्ट्रॉन जब शेयर हुआ है भाई, तो वो पाई कैसे होगा, वो तो सिग्मा होगा। नॉन पोलर कैसे होगा, जब अनइक्वली शेयर्ड होगा। एकदम डेफिनेट। Yes, सिंगल sir. बॉन्ड, हाँ सिंगल Yes, बॉन्ड में sir. थोड़ा होता, लेकिन सिंगल को कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह कुछ बोला होता या मल्टीपल चॉइस होता तो कुछ होता, ये भी नहीं है। क्योंकि इससे ज्यादा करेक्ट आंसर जो वो कहना चाह रहा है, नॉट इक्वली मतलब पोलर, शेयर्ड मतलब कोवेलेंट, और दो एटम के बीच मतलब बॉन्ड, तो आई थिंक ऑप्शन 2 इज करेक्ट। लेकिन मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपकी संतुष्टि के लिए। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 49।
आपको जानकर खुशी 49 होगी कि 49 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट जवाब है। आज की सभा में इतना ही, फिर कभी मिलते हैं नए मुद्दे के साथ, नई जानकारियों के साथ। सब तक आप देखते रहिए, खूब पढ़ते रहिए, नॉलेज को इंक्रीमेंट करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, देखते रहिए वीडियो और शेयर करते रहिए। लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। ठीक है? हाँ बेटा, कुछ बोलना चाह रहे थे? बोलना चाह रहे थे क्या बेटा? हाँ सर। बोलो बोलो, Yes, sir. जल्दी जल्दी बोलो।